Good morning, students. Our chapter name is Globalization and the Indian Economy, and in this chapter we have to study about new topic, and our topic name is Foreign Trades and Integrations of Markets. In Hindi meaning is विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण. Okay. My dear students, listen carefully, beta. Today, the country of the world have come very close to each other due to fast development in the field of transport, communication, information, technology, telecommunication, innovations, and use computers, internets, mobile phones, fax, etc. But in the olden days, foreign trade served as the main channel connecting the countries of the world. Trade routes connected India and South Asia to the market in the east and west. India has been a rich and prosperous country and has been called Golden Bird. That is why many trading companies got attracted towards India. Then what is the basic function of foreign trades? Foreign trades gives opportunity to the producer to reach buyers beyond domestic markets and sell their goods in other countries of the world. For the ordinary consumer, foreign trades proves very useful because best brands of different articles are within their reach and their choice of good example manifold due to foreign trades good travel from the market to another choice of good rises and prices of similar goods in the two markets tend to become equal through producer are forever from one another but they closely compete against one another. Thus, foreign trade does the work of connecting the market or integration of markets in different countries of the world. Small trade facts step competition from both MNC brands and important. Let us see the effects of foreign trades through the example of China's toys and Japanese watches in the Indian markets. Listen dear, first of all we have to explain in Hindi. जो ये फॉरेन ट्रेड्स था बेटा वो बहुत ही लंबे समय से डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने का काम करता था और आपस में जोड़ने का एक तरह से माध्यम बना रहा. देखो हमारे यहाँ ट्रेडिंग सिस्टम को ही ध्यान में रखते हुए जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फना दी थी. अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये जो विदेशी व्यापार है यानी कि ये फॉरेन ट्रेड्स जो है उसका काम क्या है. तो बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो फॉरेन ट्रेड्स अपने देश के जो भी अपने देश के मार्केट को दूसरे देशों के मार्केट तक पहुंचाता है. ठीक है. और जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को केवल अपने कंट्री के मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का अवसर प्राप्त नहीं होता है बल्कि वे विश्व के वर्ल्ड के और बहुत सारे देशों में जाके और अपने मार्केट को ले जाके वहाँ जो है क्या कर सकते हैं प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह जो दूसरे कंट्रीज़ में जो चीज़ें प्रोड्यूस होने वाली हैं वस्तुएं हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं इंपोर्ट करके और उन सारे वस्तुओं को अपनी भी कंट्री में उसको फैला सकते हैं. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ट्रेड के खुलने से ठीक है ट्रेड के खुलने से जो गुड्स हैं उनका जो मार्केट है वो खुलने से बस जो गुड्स का एक बाज़ार है ठीक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन
होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब व्यापार खुलता है तो वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन आना जाना शुरू हो जाता है और लोग जो है मार्केट में एक से अधिक सामान का विकल्प पाते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर ये नहीं तो हम दूसरा सामान भी खरीद सकते हैं। ठीक है, दो बाजारों में एक ही वस्तु का एक समान मूल्य होने लगता है। अब देखो, दो देश के जो प्रोड्यूसर हैं एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस तरह से जो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के डिफरेंट कंट्रीज़ के बाज़ारों को जोड़ने अथवा उनके इंटीग्रेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, एकीकरण में सहायक होता है। ठीक है, देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारा वो चाइना वाला है। ठीक है, Chinese toys in India. When Chinese manufacturers came to know that toys are commanding high price in India, they started exporting toys of different design and colors at cheaper rates to India. Chinese manufacturers learned of an opportunity to export toys of India, where toys are sold at high price. They start exporting plastic today to India. Buyers in India now have an option of choosing between India and the Chinese toys. Because of the cheaper price and new design, Chinese toys become more popular in the Indian markets. Within a year, 70 to 80% of toy shops have replaced Indian toys with the Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian markets than earlier. What is happening here is as a result of trade, Chinese toys come into the India market, and the competition between Indian and Chinese toys prove better. India buyer have a greater choice of toy and at lower price. For the Chinese toys market, that provides an opportunity to expand businesses. The opposite is true for Indian toy markets. They face losses as their toys are selling much less. Listen dear, चाइना के जो खिलौने बनाने वाली जो कंपनी है उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में जो है खिलौनों को बेचा जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ये अपॉर्चुनिटी को देखते हुए टॉय सप्लाई करना शुरू करते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जो है जो इंडियन ख़रीदार होते हैं, जो इंडियन बायर्स होते हैं, ठीक है, इंडियन बायर्स के पास जो है अब अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि अब वो दोनों में से ऑप्शन है कि वो इंडियन टॉयज़ को ख़रीदेंगे कि चाइनीज़ टॉयज़ को ख़रीदेंगे। इस तरह से जो है क्या होता है कि अब उनके पास जब ऑप्शन रहता है तो देखते हैं कि ये चीपर है, बहुत कलरफुल है, डिज़ाइनफुल है, तो लोग जो है क्या करते हैं, चाइना के टॉयज़ को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होता है कि मतलब चाइनीज़ जो खिलौने हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और देखते ही देखते एक साल में ही 70 से लेकर 80% तक की जो दुकानें हैं, भारतीय दुकानें हैं, इंडियन जो शॉप्स हैं, वहाँ पर जो इंडियन टॉयज़ थे उसकी जगह पे जो है चाइनीज़ टॉयज़ ने अपना जगह ले लिया है। अब जो है इंडिया के मार्केट में देखा जाए तो पहले से जो टॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, सस्ते हो गए। लेकिन ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है? देखो, व्यापार के कारण, ट्रेड के कारण रिज़ल्ट ये होता है कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो भारत में आ गए और वहाँ पर जो है भारत में आए और भारत में उन्होंने कंपटीशन किया और इंडियन टॉयज़ से, और वहाँ पर वो बेस्ट साबित हुए। भाई जो बायर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, वही तो साबित करेंगे, क्योंकि जब वो उनको ख़रीदेंगे तो सिंपल सी बात है कि लोगों को जहाँ पर
डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो चीज़ बेहतर है। तो इस तरह से जो है उनका वो इंडियन मार्केट्स में आके इंडियन टॉयज़ को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर जो है चाइनीज़ कंपनीज पूरी तरह से फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट होती है, और जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन टॉयज़ कंपनी है, वहाँ उसे जो है बहुत ज़्यादा लॉस को झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके खिलौने जो है, उनके जो टॉयज़ हैं वो जल्दी मार्केट में बिक नहीं रहे हैं। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। My dear students, globalization. Okay, globalization is the term now widely used to describe the increased worldwide competition between businesses. Okay, that is called globalization. In the past 2-3 decades, more and more MNC have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNCs in these countries has been rising. At the same time, foreign trades between countries has been rising rapidly. A large part of foreign trades is also controlled by the MNC. For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian market, it is also export cars to other developing countries and exports car components for its many factories around the world. Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. This result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integrations of production and market across countries. Globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. MNCs are playing a major role in globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. Besides the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs or better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. Now listen dear, globalization is the increased worldwide interdependence of most economics. Okay, integrated financially market and sourcing of production of components throughout the world. The growing importance of translations firms and the linking of many services activities through the new information and communication technology are some of its many manifestations. एक बार मैं इसको हिंदी में समझा दे रही हूँ बेटा आप लोगों को। अगर पीछे 2-3 डिकेट्स पीछे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जो थी वो वर्ल्ड में एक ऐसे जगह को ढूंढ रही थी जहाँ पर उन्हें प्रोडक्शन के लिए ऐसी जगह मिले जो कि बहुत सस्ते हों, और इन देशों में ये अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों का निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच जो है जो विदेशी व्यापार को भी
बढ़ावा मिल रहा है। जब दूसरी कंपनी हमारे यहाँ आएंगी तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ भी तो जो है हमें भी तो विदेशी व्यापार के या फिर फॉरेन ट्रेड्स की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। फॉरेन ट्रेड्स का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल में रखा जाता है बाई MNC, मतलब होता है कि वही मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे कि एग्जांपल दिया है इसमें कि फोर्ड मोटर्स जो है, फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट्स, वो केवल इंडियन मार्केट्स के लिए ही कार नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि वो इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर भी जो है वो क्या कर रहा है, अपने कार को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा वर्ल्ड में अपने फैक्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, बहुत सारे जो उसके जो जैसे उसकी जो भी एक्टिविटीज़ में जो जिन सारे सब्सटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है उन सारे को जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एक्टिविटी में जो उनकी जो गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है, यानी वस्तुएं और जो सेवाएं होती है, वस्तुएं और सेवाओं को बड़े स्तर पर व्यापार सम्मिलित होता है, ठीक है। अब देखो, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड्स हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। अधिक विदेशी व्यापार व अधिक विदेशी निवेश के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। ओके, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन उसका स्टार्ट हो, इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन एकीकरण उनका स्टार्ट हो गया है। और इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये ग्लोबलाइजेशन लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज़ दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड integrations or interconnection between countries। MNC जो है, ठीक है, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। वैश्विक एकीकरण में जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मोर एंड मोर गुड्स, बहुत ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा जो है गुड्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे गुड्स और सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। एंड मोस्ट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर द क्लोजर कनेक्ट इट्स देयर ऑफ फ्यू डिकेड्स बैक। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि अगर पिछले कुछ डिकेड्स की बात की जाए तो पिछले कुछ डिकेड्स के मुकाबले विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है जो जितने भी गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा भी जो विभिन्न कंट्रियां हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने का एक मीडियम बन गया है। और वह जो है MNC जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे विभिन्न देशों के मध्य मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हैं इसकी वजह से पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमेशा घूम रहे हैं सर्च फॉर, क्योंकि उन्हें जो है एक अच्छा बेटर इनकम का ऑप्शन चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए। बट इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, अगर पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें तो किंतु मतलब पिछले कुछ दशकों में, कुछ डिकेड्स में अनेक प्रतिबंधों के कारण
विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है कि नहीं जो है आप बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप हमारे कंट्री में नहीं आ सकते हैं। ऐसे इस तरह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है अब लोगों के आवागमन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की वजह से कमी आई हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हिंदी मीनिंग है इसका वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी। Rapid improvements in technology has been one major factors that has stimulated and globalization process. For instance, the past 15 years have seen several improvements in transportation technology. This has made much more faster delivery of goods across long distance possible at lower costs. Even more remarkable have been the development in information and communication technology. In recent times, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changed rapidly. Telecommunication facilities, telegraphs, telephone, including mobile phone fax, are used to connect another around the world to access information instance and the communication for remote areas. This has been facilitated by satellite communication device. As you would be aware, computers have now integrated almost every field of activities. You might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. Internet also allow us to send instant electronic mails, email and talk voicemails across the world at negligible cost. Listen dear, just 1 second. देखो, ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटीज़ को बहुत तेज़ी से आगे से बढ़ावा दे रहा है। अगर लास्ट 15 ईयर्स की बात करें हम लोग, तो जो ट्रांसपोर्टेशन और जो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ डेवलप कर रही है। इससे जो है बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरियों को और बहुत अपने सामान को बहुत दूर दूर के मार्केटों तक पहुँचाया जा सकता है। और बहुत ही जैसे कि मान लो कि अभी सबसे चीपेस्ट जो होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे चीपेस्ट जो है, सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है, कौन सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही, इसका डेवलपमेंट जो है हमारे जो ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर नाउ डेज़ की बात की जाए तो जो बहुत सारे अभी जो मैंने बताया आपको कि टेलीकॉम, कंप्यूटर्स, इंटरनेट वगैरह का यूज करके हम जो है बहुत तेज़ी से जो है क्या कर रहे हैं, रैपिडली अपने आप को चेंज करने की, अपने
अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को चेंज करते हुए देख रहे हैं। जैसे कि देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, ऑफलाइन ही क्लासेस थे, हमारे पास ऑनलाइन क्लास का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन देखो आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको। इसके अलावा जो है जो और भी इसमें सारी चीज़ें हैं कि जैसे दूरसंचार सुविधाएं जो हो गई, जैसे कि दूरसंचार सुविधाएं पता है, ठीक है, जैसे कि हमारा टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स हो गया। इससे हम क्या कर रहे हैं कि अब पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। अगर वर्ल्ड में कोई घटना घटती है तो तुरंत हमें पता चल जाती है, और ये सारी जो है सैटेलाइट के माध्यम से ही है, ये सारी सुख सुविधाएँ हमें अवेलेबल है, ये भी आपको पता ही है। और जैसा कि आप जानते हो बेटा कि हमारे लाइफ में नियर अबाउट हर क्षेत्र में कंप्यूटर की ज़रूरत है, कंप्यूटर का एंट्री हो चुका है। और देखो, इंटरनेट हमारे हाथ में है, जो हम चाहें जब चाहें जिस तरह की हमें जानकारी चाहिए, वो तुरंत उस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे हाथों पे रहती है, और हम तुरंत जो है जैसे हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है, तुरंत हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और उसका आंसर मिल जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम जिस तरह की हमें जानकारी चाहिए वो तुरंत जो है हम देख सकते हैं। इसके अलावा तुरंत हम ईमेल कर सकते हैं। पहले डाक पोस्ट ऑफिस से जाता था, डाक से अगर कोई लेटर जाता था तो उसको पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, ठीक है। और लेकिन अब क्या है कि अब हम मिनटों में कहीं पर भी फैक्स कर सकते हैं, कहीं पर भी ईमेल कर सकते हैं। और पहले लोग जो है अब कोई विदेश चला जाता था तो उससे बात नहीं हो पाती थी, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है, हम तुरंत जो है क्या कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। जब चाहें उसे मैसेज कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई जान सकते हैं, या फिर मतलब एक तरह से इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को क्या किया है कि एक दायरे में समेट दिया है कि हम जो है जहाँ से चाहें, जिस तरह की सूचना चाहें, उस तरह की सूचना हमें तुरंत मिल जाएगी। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ओके। नाउ क्लास इज ओवर।